Okay, student, today we'll start with the next heading, that is 1 minute. Okay, we are starting today with the enthalpies of physical transformation. Enthalpy of physical transformation. Now, in this enthalpy of physical transformation, we have to study first about the first enthalpy, that is enthalpy of phase transition. And second, we have to study here about enthalpy of atomic or molecular enthalpy of atomic or molecular change. Okay, 1 minute, student. Okay, so here enthalpy of physical transformation, in that we are doing two concepts. One is the enthalpy of phase transition and other one is the enthalpy of atomic or molecular change. Are you able to hear me? Please reply through chat or Yes, sir. okay, thank you. Now we'll see first. See, we should know what is the meaning of phase transition. I'll explain first that concept on phase transition. Phase transition means what? Phase transition means what? Phase transition means what? Suppose we are having like water in the solid state, and we can convert water from solid state to water into liquid state. This is means, see, substance is same, but we are changing its state from solid to liquid, and that's why it is called as a phase transition. Or it may be we are having water in the liquid state and we can convert water into gaseous, that is vapor state. That is called as the phase transition. So phase transition means what? Changing the substance from its one state to another state at constant temperature and at constant pressure. मतलब ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल वाटर को अगर सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब वहां का टेम्परेचर और वहां का प्रेशर कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. अगर हम लोग वाटर को लिक्विड से गैस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब तक हमारे प्रोसेस चल रहा है तब तक वहां का टेम्परेचर और प्रेशर कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. सो बेसिकली यहाँ पे हमें मीनिंग क्या देखना है? व्हाट इज फेज ट्रांजिशन? चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम इट्स वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट at constant temperature and pressure without changing its chemical
composition without changing its chemical composition means what? देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला H2O ही है और यहाँ पे भी फॉर्मूला H2O ही है, मतलब फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है. Correct. Chemical composition is not changed. मतलब substance can change from the one physical state to another physical state, of course, but its chemical composition remains the same. That is called as a phase transition. So what is phase transition? In which one substance is converted into another substance at constant temperature and pressure without changing its chemical composition are called as the phase transition. Are called as a phase transition. मतलब यहाँ पे हमारा सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है. एंड इन दैट फेज ट्रांजिशन अभी हमें स्टडी करना है. द फर्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अभी एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन मींस व्हाट? एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच एंड फ्यूजन मींस FUS. Enthalpy of the fusion is FUS, enthalpy of the fusion. Now here in the enthalpy of the fusion, देखो हम लोग एग्जांपल में पढ़ लूंगा. देखो हमारे पास वाटर है and we are having water in the solid state and we can convert water into liquid state. Now here we should know the meaning of the term, that is fusion means melting. फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग. मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास वाटर सॉलिड स्टेट, ना वाटर सॉलिड स्टेट मीन्स व्हाट? वी आर हैविंग आइस. नो, व्हेन वी से वी आर हैविंग वाटर इन द सॉलिड स्टेट, मतलब हमारे पास आइस है. अभी जब आइस मेल्ट हो रहा होगा, आइस विल मेल्ट इनटू विच स्टेट? लिक्विड, मतलब वाटर रहेगा. लेकिन वो मेल्ट होते समय आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा. आइस विल एब्जॉर्ब द हीट. और आइस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? सो एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन is equal to plus 6.01 kilojoule per mole at 0 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब यहाँ पे देखो, मतलब हम लोग अभी ऊपर क्या मेंशन किया था कि वाटर विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वाटर विल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस. लेकिन ये जब चेंज हो रहा होगा तब वाटर हीट तो एब्जॉर्ब करेगा, आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ही मेल्ट होगा. तो आइस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? 6.01 किलो जूल. और आइस जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. मतलब फ्यूजन का मतलब मेल्ट होने के लिए आइस ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया है? 6.01 किलो जूल. ओके, किलो जूल. और पर मोल क्यों? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वाटर का अमाउंट कितना लिया हुआ है? 1 मोल लिया. यहाँ पे वाटर का अमाउंट कितना लिया हुआ है? 1 मोल लिया हुआ है. मतलब अगर हमें 1 मोल वाटर को मेल्ट करना है तो 1 मोल वाटर को मेल्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा? 6.01 किलो जूल हीट लगेगा. नाउ जैसे कि 1 मोल मतलब किसी को मन में डाउट रहेगा कि 1 मोल मतलब कैसे हमें पता चलेगा? देखो हम लोग देखते हैं वाटर का मोलार मास. मोलार मास ऑफ वाटर, करेक्ट. मोलार मास ऑफ वाटर कितना आएगा? 2H plus 1 oxygen. So 2 into 1 plus 16, that is equal to 18 gram. See how much water I have taken over here? 1 mole. और 1 मोल का मास कितना? 18 ग्राम पर मोल, मतलब 18 ग्राम. तो मोलार मास ऑफ वाटर, और आई कैन से मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. मतलब अगर हमारे बोला कि हमारे पास 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर मतलब कितना वाटर हमारे पास है? 18 ग्राम है. तो 18 ग्राम वाटर को मेल्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा? 6.01 किलो जूल हीट लगेगा. एट व्हाट टेम्परेचर? 0 डिग्री. क्योंकि हमारे पास आइस है और आइस का टेम्परेचर, आइस है मतलब उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री है. मतलब अगर हमारे पास आइस 0 डिग्री टेम्परेचर पे है तो उसे अगर हमें मेल्ट करना है तो कितना हीट लगेगा? 6.01 किलो जूल हीट लगेगा. और वो जो हीट हमें मेल्ट करने के लिए लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. It is called as the enthalpy of fusion. So basically what is enthalpy of the fusion?
I'll just write down the definition here. The enthalpy change occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid without change in temperature and at constant pressure is called as enthalpy of fusion. Is called as enthalpy of fusion. देखो यहाँ पे हम लोगों ने वाटर का अमाउंट कितना लिया है, 1 मोल लिया है. तो 1 मोल वाटर को सॉलिड फॉर्म से 1 मोल ऑफ वाटर को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन. बट जब हमारा आइस मेल्ट रहा होगा, तब तक आइस मेल्ट हो रहा है, तब तक आइस का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा. और आइस है ओपन वेसल में, और ओपन वेसल में इसलिए उसका प्रेशर भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. देखो आइस हम लोगों ने ट्रे में निकाल के लिया, एक ट्रे है तुम्हारे पास और ट्रे में आइस रखा हुआ है. तो ट्रे में अगर आइस रखा हुआ है तो वहां का प्रेशर कितना रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, करेक्ट. और अगर आइस में मतलब आइस इज केप्ट इन द ट्रे, तो ओपन वेसल है, ओपन वेसल है मतलब वहां पे प्रेशर कितना रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर रहेगा. और जब तक आइस पूरा मेल्ट नहीं होता, देखो आइस मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब तक आइस मेल्ट हो रहा है तब तक वहां का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा. तो होपफुली देखो सब पहले सिंपल मीनिंग क्या मैं बोलता हूँ, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन, कि अगर हमें आइस को मेल्ट करना है तो आइस को मेल्ट करने के लिए आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा, और आइस जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उसे हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन. और जब आइस मेल्ट हो रहा होगा तब वहां का टेम्परेचर और वहां का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट. सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, the enthalpy change occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid without change in temperature and at constant pressure is called as the enthalpy of fusion. Please I'll read again. The enthalpy change occur या enthalpy change will take place when, मतलब enthalpy इतना energy हमें लगेगा कभी, when 1 mole of the solid is converted into liquid. देखो तुम्हारे डेफिनेशन में ये 1 मोल वर्ड आना चाहिए, और हम लोग फ्यूजन मतलब मेल्ट कर, इसलिए यहाँ पे सॉलिड कंपल्सरी आना चाहिए. सो 1 मोल ऑफ अ सॉलिड is converted into liquid without change in temperature and constant pressure is called as enthalpy of fusion. Now just continue here. Reverse of the fusion is freezing, because we know that fusion का मतलब होता है melting. फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग. तो रिवर्स ऑफ द फ्यूजन इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग. रिवर्स ऑफ द फ्यूजन इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग. तो अभी फ्रीजिंग का मतलब क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे वाटर को मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये फ्यूजन हुआ. तो अगर मैं रिवर्स रिएक्शन लिखूंगा, रिवर्स मतलब अगर अभी वाटर मेरे पास लिक्विड में रहेगा और अगर मैं उसको फ्रीज में रख दूंगा तो वाटर विल चेंज इनटू विच स्टेट, सॉलिड. सो हियर आई विल राइट डाउन द सेम रिएक्शन. Same reaction I will write here, that is water I am having in the liquid. How many mole? 1 mole. Always remember that we are studying the concept for 1 mole. So 1 mole of the water will convert into 1 mole of the water into solid state, that is called as the freezing.
and the enthalpy change for this process are called as the enthalpy of freezing और enthalpy of the freezing. और ये जो हमारा reactions है इस reactions के opposite है, रिवर्स है. तो यहाँ पे एंथैल्पी +6 था और यहाँ पे एंथैल्पी कितना रहेगा -6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो मुझे इतना ही बोलना है कि रिवर्स ऑफ द फ्यूजन इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग. व्हाट इज रिवर्स? कि हम लोग यहाँ पे वाटर को फ्रीजर में रखेंगे तो वाटर फ्रॉम द लिक्विड स्टेट विल चेंज इनटू सॉलिड स्टेट एंड दिस प्रोसेस विल ऑकर व्हाट टेम्परेचर 0 डिग्री. लेकिन वाटर से सॉलिड बनने के लिए वाटर से हीट बाहर निकलेगा अभी, तो इसलिए माइनस है. माइनस मतलब हीट विल बी रिलीज, माइनस मतलब हीट विल बी रिलीज. सो रिवर्स ऑफ द फ्यूजन इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला कंसेप्ट देखा. व्हाट इज, सबसे पहले what is phase transition? Changing the substance from the one physical state to another physical state at constant temperature and pressure without changing its chemical composition are called as phase transition. Under phase transition, we are having the first one, that is enthalpy of the fusion. What is enthalpy of the fusion? The enthalpy change occurs when 1 mole of a solid is compulsory 1 mole hona hi chahiye, because we study concept 1 mole. 1 mole of a solid is converted into a liquid without change in its temperature and constant pressure is called enthalpy of the fusion. और फ्यूजन का वैल्यू हमेशा प्लस रहेगा, लेकिन रिवर्स ऑफ द फ्यूजन, reverse of the fusion is called as a freezing, and for reverse equation the value of the enthalpy of the freezing is going to be minus. Okay, तो ये हमारा एक कंसेप्ट हुआ. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में पहला एंथैल्पी देखा है हम लोगों ने, दैट इज द फर्स्ट एंथैल्पी वी हैव सीन हियर, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ये पहला एंथैल्पी हुआ. यस, नाउ आई गो फॉर सेकंड एंथैल्पी. Second enthalpy is enthalpy of vaporization, that is delta H VAP. Enthalpy of vaporization, that is delta H मतलब enthalpy and VAP मतलब vaporization. 1 minute. Enthalpy of vaporization. Now, in what is vaporization? Vaporization means what? We are having the water in the liquid state and we can convert it into vapor, that is in the gaseous state. The converting the water from liquid to its vapor state are called as vaporization. लेकिन जब वाटर को हम लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब पानी को हमें गर्म करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग जो हीट सप्लाई करेंगे वाटर को, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंड एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन इज हम लोग यहाँ पे हीट सप्लाई करें, मतलब वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा. एंड व्हाट इज द हीट विल गेट हियर? प्लस 40 किलो जूल पर मोल, 40 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब यहाँ पे जो हमारा वाटर है, यहाँ पे हमारे वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी कितना है? 100 डिग्री. मतलब ऑलरेडी हमारा वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है. उसके बाद मुझे वाटर को कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? प्लस 40. मतलब वाटर इतना हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड वाटर विल चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू इट्स वेपर. और जब तक वाटर वेपराइज हो रहा है तब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा. करेक्ट? Or similarly, I can say other one more example. I am having the water here in the liquid state, और मैं water को liquid state से gas phase में convert कर रहा हूँ. And here the enthalpy of the vaporization is equal to plus 44 kilojoule per mole at
25 डिग्री सेल्सियस। तो ये अलग अलग मतलब देखो यहाँ पे भी हम लोग वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी वाटर को लिक्विड से गैस में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ वेपराइजेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है उसका ऑलरेडी टेम्परेचर 100 डिग्री है और फिर उसके बाद हम लोग इतना हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वेपराइज हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास वाटर है उसका ओरिजिनल टेम्परेचर 25 डिग्री है। 25 डिग्री मतलब नॉर्मल वाटर है। और नॉर्मल वाटर को फिर हमें कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 44 किलो हीट सप्लाई करना पड़ेगा तो ही वाटर विल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। तो भी किसी के दिमाग में डाउट रहेगा, अरे 100 डिग्री पे हीट कम लग रहा है और 25 डिग्री पे हीट ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पानी गर्म मतलब बॉइल हो रहा है। तो थोड़ा सा हीट सप्लाई कर दो, वाटर विल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और यहाँ पे पानी ठंडा है, नॉर्मल है, नॉर्मल वाटर है। तो नॉर्मल वाटर को अगर तुम्हें वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी, करेक्ट? सो इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. So what is vaporization here? The enthalpy change occurs the enthalpy change accompanying the, या मे भी तुम्हें अगर ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है तो एंथैल्पी चेंज ऑकर्स, करेक्ट? एंथैल्पी चेंज accompanying the vaporization of 1 mole of liquid, 1 mole of a liquid without changing its temperature at प्रेशर। देखो यहाँ पे भी मतलब जब तक वाटर वेपराइज हो रहा है तब तक वहां का टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर भी कैसा रहेगा, व्हाट इज एंथैल्पी? तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो और तुम्हारे ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं, द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स। क्योंकि मैं ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि किसी किसी को अकम्पनिंग वर्ड डिफिकल्ट लगेगा। एंथैल्पी चेंज ऑकर्स during vaporization of 1 mole of liquid। ये वर्ड कंपल्सरी आना चाहिए, 1 मोल ऑफ लिक्विड, क्योंकि वेपराइज कौन होगा, लिक्विड होगा, और लिक्विड का अमाउंट कितना होगा, 1 मोल होगा। द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो होपफुली तुम्हें वेपराइजेशन का मीनिंग समझ में आया होगा कि वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट आर कॉल्ड एज वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन करने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए साइन प्लस है। और वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड द वाटर विल चेंज इनटू गैसियस स्टेट, सो दिस वैल्यूज आर पॉजिटिव। हमें कोई भी वैल्यूज लर्न नहीं करने, हमें खाली मीनिंग चाहे मालूम होना चाहिए कि वेपराइजेशन मतलब क्या, लिक्विड टू गैस, बस इतना ही। ये वैल्यू, और वेपराइजेशन का वैल्यू प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो प्लस रहेगा। कोई भी वैल्यू हमें लर्न करना नहीं है, करेक्ट? सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स, ये डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखोगे तो भी चलेगा। द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग the vaporization of 1 mole of liquid at constant temperature and pressure, correct? At constant temperature and pressure. So evaporation. Now I'll just write down here the reverse of vaporization. Reverse of vaporization is
कंडेंसेशन, रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन मतलब अगर अभी हमारे पास ऑलरेडी वेपर्स है तो वेपर्स को अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो वेपर्स विल चेंज इनटू अ लिक्विड, सो कंडेंसेशन। तो अभी देखिए यहाँ पे रिवर्स करना, रिवर्स मतलब ऑलरेडी वेपर्स है तो वेपर्स विल चेंज इनटू लिक्विड, वेपर्स विल चेंज इनटू लिक्विड। तो अगर मैं इक्वेशन को रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो डेल्टा एच वैल्यूज है वैल्यूज सेम रहेगा बट साइन इज गोइंग टू बी माइनस। तो मतलब यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है थर्मोडायनामिक्स में कि हम लोग कोई भी प्रोसेस को अगर रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद जो वैल्यूज है वो सेम रहेगा बट साइन विल चेंज, करेक्ट। तो सेम आई विल राइट इक्वेशन हियर, व्हाट आई राइट हियर, वी आर हैविंग वाटर इनटू गैस स्टेट and we are converting the water into liquid state, the condensation हो रहा है, and the enthalpy change over here is called as enthalpy of condensation, COND, enthalpy of condensation, and the value will be minus, value is going to be minus 44 kilojoule per mole at 100 degree, मतलब बाकी सब सेम रहेगा, only thing what water will change from gas to liquid, एंथैल्पी चेंज विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, जो प्लस था उधर अभी माइनस हुआ। सिमिलरली देखो हमारा सेकंड एग्जांपल यहाँ पे था लिक्विड टू गैस, तो अभी मैं उल्टा करूंगा, गैस टू लिक्विड होगा तो वैल्यू कितना होगा -44, करेक्ट। सॉरी सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे 40 लिखना था, ये वैल्यू 40 है। ओके, और दूसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, वाटर विल चेंज फ्रॉम गैस टू वाटर विल चेंज इनटू लिक्विड and enthalpy of condensation is minus 44 kilojoule per mole at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब बेसिकली यहाँ पे उन्हें क्या बोलना कि हम लोग कोई भी प्रोसेस करते हैं, अगर वाटर को हम लोग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी उसके लिए हीट लगेगा, और अगर हम लोग वाटर को गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो भी एनर्जी चेंज होगा। ये जो एनर्जीज है उनको हम लोग एंथैल्पी चेंज। तो होपफुली आपको मीनिंग ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज वेपराइजेशन? द प्रोसेस इन विच substance changes from liquid state to its gaseous state are called as vaporization, and energy changes occur during this process are called as what? Enthalpy of vaporization. This vaporization occurs at constant temperature and pressure, correct? और अगेन हियर हमेशा यहाँ पे 1 मोल के लिए वैल्यू, बिकॉज हम लोग यहाँ पे यूनिट लिखते हैं 40 किलो जूल पर मोल, इसलिए यहाँ पे 1 मोल, 44 किलो जूल पर मोल, इसलिए यहाँ पे 1 मोल। सिमिलरली वाटर देखो यहाँ पे 1 मोल है इसलिए किलो जूल पर मोल, और मतलब हम लोग जो वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा 1 मोल के लिए। क्यों 1 मोल के लिए? क्यों, अगर मुझे कोई बोलेगा मुझे 5 मोल के लिए वैल्यू चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर कोई मुझे बोलेगा 2 मोल के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 मोल के लिए मल्टीप्लाई करूँ। इसलिए वी प्रोवाइड द वैल्यू ऑलवेज फॉर हाउ मेनी मोल? 1 मोल, और फिर मल्टीपल नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, करेक्ट। सो आई विल राइट डाउन ऑन दिस पेज। तो फेज ट्रांजिशन में सेकंड एंथैल्पी हमारा हुआ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, करेक्ट। अभी वेपराइजेशन के बाद आई जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। yes, third in that phase transition, the third one, that is enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. Now sublimation means what? See here, that is delta H. Yes, it is called as enthalpy of sublimation. Now we know sublimation matlab the water from solid state will convert into water into gaseous state. देखो सब्लिमेशन का एग्जांपल तुम्हें मालूम रहेगा है ना, हम लोग कैम्फर मतलब कपूर बोलते हैं कि वो डायरेक्टली क्या होगा, होता है कपूर, it directly change from solid state to gas state,
विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड, दैट इज सब्लिमेशन। या हमारे पास अगर नैप्था बॉल है, नैप्था बॉल जो घर में हम लोग कबर्ड में रखते हैं, नैप्था बॉल नॉर्मली इन द विच स्टेट है, सॉलिड, और डायरेक्टली कौन से फॉर्म में चला जाता है, गैस, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो सब्लिमेशन का मतलब चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड आर कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखो, और हम लोग ने यहाँ पे वाटर का अमाउंट कितना लिया हुआ है, 1 मोल लिया हुआ है, तो एंथैल्पी ऑफ sublimation is equal to enthalpy of sublimation is equal to 51.08 kilojoule per mole, 51.08 kilojoule per mole at 0 डिग्री सेल्सियस। देखो थोड़ा मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? पहले सब्लिमेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है। सब्लिमेशन मतलब चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, सो इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और देखो, जो हमारे पास वाटर सॉलिड स्टेट में मतलब आइस है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास आइस रहेगा तो आइस का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री पे देखो, अगर हम लोग उससे आइस को कितना हीट सप्लाई करेंगे, 51.08, तो आइस डायरेक्टली चेंज होगा गैस में, मतलब विदाउट एनी वाटर, करेक्ट। अगर कम हीट सप्लाई करेंगे तो आइस विल चेंज इनटू लिक्विड, लेकिन हम लोग ज्यादा हीट सप्लाई कर रहे हैं तो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जगह, टाइम ही नहीं मिल रहा है, आइस डायरेक्टली चेंज किसके फॉर्म में चला जा रहा है, गैस फॉर्म में चला। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन? आई जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। The enthalpy change occurs when 1 mole of solid, ये वर्ड कंपल्सरी है, 1 mole of solid is directly converted to gas without changing to its liquid। या अगर नहीं ले राइट इतना लेगा तो भी चलेगा। The enthalpy change occurs when 1 mole of solid is directly converted to a gas at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। okay, देखो, what is sublimation? Changing the substance from solid to directly into a gas without changing into a liquid are called as enthalpy of, are called as sublimation, and energy required for this change to carry out are called as enthalpy of sublimation। और ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये मेल्ट होगा ना, इसलिए वैल्यू प्लस है। तो जिस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब किया जाता है उनका वैल्यू पॉजिटिव होता है, और जिस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है उनका वैल्यू माइनस रहता है, करेक्ट। व्हाट इज डेफिनेशन? देखो, डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी आप लिख सकते हो, या मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो। द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन 1 mole of a solid is directly converted into a gas at constant temperature and pressure। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स दिखाया है, यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया है, मैं सेम स्टेप 2 स्टेप में करता हूँ। देखो कैसे, मतलब नॉर्मली अगर वाटर विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वाटर इनटू लिक्विड, लेकिन ये कभी पॉसिबल होगा? देखो, ये हमारा जो चेंज हो रहा है, ये चेंज कहाँ, कितने, कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, 0 डिग्री पे हो रहा है। और 0 डिग्री पे हम लोग कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, 51.08 किलोजूल इतना हीट सप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर मैंने यहाँ पे इधर वाटर को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एंथैल्पी, सॉलिड टू लिक्विड मतलब इट इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन।
fusion, and enthalpy of the fusion is 6.01 kilojoule per mole at 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर मेरे पास आइस है और मुझे अगर मेल्ट करना है तो 0 डिग्री पे कितना हीट लगेगा, 6.01। बाद में मैं क्या करूंगा, वाटर को लिक्विड फॉर्म से वाटर को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सो लिक्विड टू गैस आर कॉल्ड एज वेपराइजेशन। बट मुझे वेपराइजेशन के, लेकिन देखो यहाँ पे जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे मुझे कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 45.07 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री। मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो देखो यहाँ पे वाटर को हम लोगों ने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया था, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 100 था तो कम हीट लगा। यहाँ पे हम लोगों ने वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 25 था तो थोड़ा और ज्यादा हीट लगा, 44 लगा। और यहाँ पे अगर थोड़ी देखोगे, यहाँ पे भी मैं वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, इसलिए मुझे और ज्यादा हीट लग रहा है। मतलब जितना टेम्परेचर लो होगा उतना हमें हीट ज्यादा लगेगा टू वेपराइज, करेक्ट। और बाद में मैं अभी दोनों स्टेप्स को ऐड कर, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली बोला है कि अगर मैं वाटर को सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री पे कितना हीट लगेगा, 51.08 लगेगा। तो सेम प्रोसेस में ब्रेकअप करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास वाटर सॉलिड से लिक्विड मतलब फ्यूजन है तो 6.01 किलो जूल एट 0 डिग्री लगेगा। और अगर हमारे पास सेम वाटर 0 डिग्री वाला वाटर अगर गैस में कन्वर्ट करो तो कितना हीट लगेगा, 45 लगेगा। तो अगर मैं दोनों स्टेप्स अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ पे एरो के बाद वाटर इन द लिक्विड स्टेट है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वाटर लिक्विड कैंसिल होगा, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, वाटर इन द सॉलिड स्टेट will change to water into gaseous state, and we know that water from solid to gas is called as enthalpy of sublimation is equal to, तो sublimation है तो अगर मैं दो इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों एंथैल्पीज को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 6.01 प्लस 45.07, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 51.08 किलो जूल पर मोल। सेम वैल्यू है, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली चेंज किया तो इतना वैल्यू सप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे दो स्टेप में किया तो इतना। तो व्हाट इज फॉर्मूला आई गॉट, सो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला मिला एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू, तो मैंने कौन सा एंथैल्पीज ऐड किया है, एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सो वी गॉट वन फॉर्मूला, इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल होगा तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। बट व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर हैविंग, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो तुम्हें सारे टर्म समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा टर्म किया है, दैट इज थर्ड टर्म आई हैव डन हियर, दैट इज एंथैल्पी ऑफ enthalpy of sublimation। तीन एंथैल्पी हुआ, देखो तीनों में दे ऑल थ्री आर कमिंग अंडर विच कैटेगरी, ओके हाँ। देखो यहाँ पे कैंसलेशन कैसे हुआ मालूम है, केमिस्ट्री में हम लोग जब दो रिएक्शन हमारे पास रहेंगे, देखो फॉर एग्जांपल देखो अगर मेरे पास रिएक्शंस है A gives you B and B gives you C, अगर मुझे दोनों इक्वेशन अगर ऐड करना है, ऐड, तो ऐड करने के बाद हम लोग नॉर्मली कैसे करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे देखो ये एरो के बाद बी था और यहाँ पे एरो के पहले बी है। अगर ये बी मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस बी होगा, तो प्लस बी एंड माइनस बी कैंसिल हो गया। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में वैसे नहीं करते, केमिस्ट्री में कैंसिलेशन कैसे करते हैं, देखो अगर मैथमेटिक्स रहेगा तो तुम क्या करोगे, देखो तुम अगर डायरेक्टली अगर ऐसा ऐड कर दिया a प्लस बी गिव्स यू b प्लस सी, ठीक है। तो b में क्या करूंगा, अभी a यहाँ पे जो a मिला है उस a को इधर ही रखा और ये b प्लस सी, और ये b मैंने राइट साइड में लेके आया,
यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे माइनस बी हुआ, तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हुआ, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, ए गिव्स यू सी। लेकिन केमिस्ट्री हम लोग कैसे करते हैं, ऐसा मतलब मैथ्स की तरह नहीं करते, इधर लेके जाते हम लोग डायरेक्टली ऐसे इक्वेशन लिखते हैं, ए गिव्स यू बी और बी गिव्स यू सी रहेगा, तो कैंसिलेशन करने के लिए एक में होगा एरो के बाद और दूसरे में होगा एरो के पहले, तो यहाँ पे एरो के बाद है, यहाँ के एरो पे पहले, तो कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, ए गिव्स यू सी। समझ में आ गया? ओके ठीक है, चलो तो ये तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या 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 पॉइंट किए थे। सबसे पहले हमारा क्या था, फेज ट्रांजिशन था। फेज ट्रांजिशन का मतलब चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड एज अ फेज ट्रांजिशन। उसके बाद हम लोग उसके अंदर हम लोग 3 एंथैल्पीज देखे थे। फेज ट्रांजिशन में एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ओके, और उसका रिवर्स फ्रीजिंग था। वेपराइजेशन, चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और उसका रिवर्स कंडेंसेशन था। एंड सब्लिमेशन, चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड आर कॉल्ड एज अ सब्लिमेशन। करेक्ट? ये तीनों मीनिंग हो गए। इसका फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। फॉर्मूला हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू व्हाट, एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन। करेक्ट? तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये फॉर्मूला के ऊपर बेसिक मेरे पास न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक ही न्यूमेरिकल तो हो जाएगा, ठीक है? 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तुम्हारे पास मतलब न्यूमेरिकल में पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं फोटोज तुम्हें भेज दूंगा प्लीज। जो मतलब एक्चुअली मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग नोटबुक में लिखते रहो, बिकॉज इजी इजी है। देखो न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस is 6.01 kilojoule per mole. The enthalpy of vaporization of water is 45.07 किलोजूल पर मोल। देखो यहाँ पे मोल का इंपॉर्टेंट बहुत है कि किलोजूल मतलब इतना हीट लगेगा, लेकिन कितने मोल्स के लिए, 1 मोल के लिए। करेक्ट? एंड दे से what is enthalpy of sublimation of ice। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया इन्फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है। तो दे हैव गिवन हियर एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, फ्यूजन ऑफ आइस मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है, कितना दिया हुआ है, 6.01 किलो जूल पर मोल। ओके, उसके बाद क्या दिया देखो हम लोगों ने उन्हें, the enthalpy of vaporization of water, vaporization दिया होता, they have given enthalpy of vaporization of water कितना दिया हुआ है वैल्यू, 45.07 किलो जूल, और ये भी 1 मोल के लिए। और बोला व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आइस, तो हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फाइंड आउट करना है। तो वो भी जो वैल्यू हमें मिलेगा किलो जूल पर मोल के लिए, बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर प्रोवाइडेड फॉर 1 मोल, तो यहाँ पे 1 मोल के लिए आ जाएगा। करेक्ट? तो अभी यहाँ पे मेरा फॉर्मूला रहेगा एंथैल्पी ऑफ sublimation is equal to enthalpy of the fusion plus enthalpy of
वेपराइजेशन। तो फ्यूजन का वैल्यू है 6.01, ये वैल्यू है 45.07, करेक्ट। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो 8 एंड 51.08 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए, करेक्ट। तो ये मेरा न्यूमेरिकल, ये टाइप का एक ही न्यूमेरिकल मेरे पास था, तो ये हुआ। इसके बाद और कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो मैं आपको सेंड करूँ। लेकिन अभी मुझे बोलो, अभी ये जो टॉपिक मैंने कहा, देखो हमारा एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है आज, यहाँ पे इतना ही पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे वाला पार्ट करना है, बट दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? अभी तक जो हम लोगों ने आज जो 3 डेफिनेशन किए हैं, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, कैसे मतलब मीनिंग मालूम होना चाहिए। व्हाट इज फ्यूजन? चेंजिंग द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। व्हाट इज वेपराइजेशन? Changing the substance from liquid to gas. And what is sublimation? Changing substance from solid to gas. And all these process occur at constant temperature and pressure. बस डेफिनेशन हो गए, इतना हमेशा ध्यान में रखना। अभी मुझे बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, अगर रहेगा तो प्लीज मतलब बच्चों बोल दो, ऑन करो प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। नहीं है, ठीक है। तो आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू। Yes, any? Yes, yes. I will send the photo of all this material which I have written here. I will send everything to you all. Okay, so I'm ending meeting.